السلام علیکم۔ اسٹار پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ابصار احمد۔ ناظرین، آج ذکر ہے اس ہستی کا جو ہم سب کی ماں ہے، اس ہستی کا جو کہ خواتین کے لیے مشعل راہ ہے، وہ ہستی جو رفیقہ رسول اور مادر زینب و بتول ہے۔ میری مراد ام المومنین، ہم سب کی ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ ناظرین کرام، عام الفیل کے واقعے سے 10 برس قبل بنو اسد کے قبیلے میں وہ خاتون جنم لیتی ہے جو اس وقت مکہ مکرمہ بلکہ پورے عرب کے لیے ایک رول ماڈل بن جاتی ہے۔ اس وقت جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ عرب کی سرزمین خواتین کے لیے جکڑی ہوئی تھی، بلکہ وہاں پر بہادری کا تو یہ نشان تھا کہ لوگ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، مگر بنو اسد کی اس بیٹی نے وہ نام کمایا کہ بڑے بڑے تاجر اور بڑے بڑے سردار بھی ششدر رہ گئے۔ یہ ہیں جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ ناظرین کرام، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں کیسے آئی، اس سے قبل ہم آپ کو لے چلتے ہیں عرب کے اس معاشرے کی طرف جہاں پر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا طاہرہ کہلاتی تھی۔ ان کے والد کا نام خویلد اور والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ پورا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی بن کلاب، اور پھر قصی سے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا شجرہ نسب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے 5 بھائی اور 4 بہنیں تھیں۔ یہاں پر بھی ایک آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سب سے بڑے بھائی، ان کا نام تھا عوام، اور وہ عوام جن کا نکاح میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب سے ہوئی، اور پھر ان سے اللہ تعالیٰ نے وہ فرزند عطا کیا جو کہ عشرہ مبشرہ صحابی بنے، اور پھر ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے کون واقف نہیں، جنہوں نے یزید کے خلاف مکہ میں بغاوت کی تھی، جہاں مدینہ میں امام عالی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز گونج رہی تھی، تو دوسری جانب مکہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ یزید کے خلاف کھڑے تھے۔ ان کے دیگر بھائیوں کے نام حزام اور نوفل بھی تھے۔ میں یہاں پر بتاتا چلوں کہ نوفل کے بیٹے ورقہ بن نوفل وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اس وقت، جی ہاں، اس وقت جب عرب میں بت پرستی عام تھی، اس وقت انجیل کی تعلیم حاصل کی، اور پھر انجیل کے بہت بڑے عالم بن گئے، اور پھر ان کی زندگی سے اس خاندان پر، یعنی جس میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بھی شامل ہیں، ان کی زندگی میں توحید کے اثرات نمایاں ہوئے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہستی ہیں جنہوں نے ایام جاہلیت میں بھی کبھی بھی بتوں کے آگے سجدہ نہیں کیا، بلکہ وہ دین ابراہیمی پر کاربند تھی، اور ہمیشہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے درس میں شریک ہوتی تھی۔ ورقہ بن نوفل نے ایک مرتبہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو بتایا، عرب کے اندر بہت جلد آخری نبی کا ظہور ہوگا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اس نبی کا انتظار کرنے لگی، اور ہمیشہ اللہ سے دعا کرتی کہ اے اللہ، مجھے اس آخری نبی کا زمانہ دکھا دینا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ واحد خاتون ہیں جو رات کے وقت خانہ کعبہ میں جا کر اللہ کی عبادت کرتی اور نماز ادا کرتی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی کہ اے اللہ، مجھے راہ راست پر رکھنا۔ ایک مرتبہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا رات کے وقت خانہ کعبہ گئی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ سے حسب معمول یہی دعا مانگی کہ اے اللہ، مجھے راہ راست پہ رکھنا۔ اس دن سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے دل میں جو خشیت تھی وہ آسمانوں کو چیر رہی تھی۔ پھر کیا ہوتا ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ گھر آتی ہیں اور سو جاتی ہیں۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ابھی حالہ کے نکاح میں تھی، جن سے ان کے 2 بیٹے
हिंद और हारिस जन्म ले चुके थे। हजरत खदीजतुल कुबरा रात को सो रही हैं कि रात के आखिरी पहर उनको एक ख्वाब दिखाई देता है, जिसमें वो देखती हैं कि एक सूरज उनके घर में आ गया और उस सूरज ने इंसानी शक्ल इख्तियार कर ली, और फिर वो सूरज आपसे मुखातिब होता है और फिर आपकी आंख खुल जाती है। अब ये ख्वाब एक दिन आया, हजरत खदीजा की जब आंख खुली तो उन्हें समझ में नहीं आया। अगले दिन फिर वही ख्वाब आया कि वो सूरज इतना रोशन है और फिर सूरज की जानिब पूरी दुनिया चली आ रही है। अब हजरत खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से बर्दाश्त नहीं हुआ, लिहाजा वो अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास गई और फिर वर्का बिन नौफल को अपना पूरा ख्वाब बताया। वर्का बिन नौफल ने ख्वाब सुनने के बाद फरमाया कि बहुत जल्द आपका घर नूरे नबूवत का आशियाना बनेगा। हजरत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा समझ ना पाई कि आखिर मेरा घर नूरे नबूवत का आशियाना कैसे बन सकता है। वर्का बिन नौफल ने यह भी बताया कि आपके घर से दीन इस्लाम की ऐसी तबलीग होगी और आपकी आल से दीन इस्लाम के वो फर्जंद निकलेंगे जो कि पूरी दुनिया में इस्लाम का डंका बजाएंगे। अभी हजरत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा इसी मखमसे में हैं कि अरब की रिवायत के मुताबिक जो तौहीद परस्त खवातीन होती थी, रजब की किसी रात सब जमा होती थी, तौरात या इंजील के आलिम आके तकरीर किया करते थे। ऐसे ही रजब की एक शब थी जब सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा अपनी सहेलियों के साथ उस महफिल में मौजूद थी। वहाँ पर एक जश्न का समा था, वहाँ पर एक तौरात का आलिम तकरीर कर रहा था। बाज़ किताबों में लिखा है यहूदी आलिम तकरीर कर रहा था, मगर मेरा इख्तलाफ इस बात से है चूँकि मक्का में किसी किस्म का कोई यहूदी मुकीम नहीं था, लिहाजा मैं यही कहूँगा कि तौरात का आलिम वहाँ पर खिताब कर रहा था। उसने कहा बहुत जल्द आखिरी नबी का ज़हूर होने वाला है और मैं देख रहा हूँ इन्हीं खवातीन में से एक खातून ऐसी हैं जो उस नबी की ज़ौजा बनेंगी। अगर तुम लोगों के पास अगर उसका रिश्ता आए तो ताखीर ना करना। ये सुनकर बहुत सारी खवातीन दिल में अरमान लिए बैठ गईं, तो बहुत सारी खवातीन मजाक भी करने लगी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इसी असना में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहां से गुजर हुआ तो उस तौरात के आलिम ने देखते ही फरमाया कि यही वो शख्स है जो कि नबी हो सकता है। सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की पहली मर्तबा निगाह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी। बस निगाह का मिलना था, सैयदा खदीजतुल कुबरा के दिल में एक उमंग जाग उठी, मगर अभी मंजिल वाज़ेह नहीं है कि क्या होने वाला है। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर आईं और फिर सोचती रहीं। इसी दौरान उनके पास रिश्ते आने शुरू हो गए। आप चूंकि अपने हुस्न जमाल और मालो मता की वजह से पूरे अरब में ताहिरा के लक़ब से याद की जाती थी, इसीलिए बड़े बड़े सरदारों ने बड़े बड़े मेहरों के साथ निकाह का पैगाम भेजा, मगर कोई भी शख्स हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दिल को नहीं भा रहा था। नाज़रीन, यहाँ पर बड़ी अहम बात है कि देखिए उस दौर में भी जो कि जाहिलियत का दौर है, वहाँ पर सैयदा खदीजतुल कुबरा जो है खातून होने के बावजूद अपनी राय रखती हैं, अपने ही फैसले कर रही हैं, लिहाजा उनके पास जितने भी प्रपोजल्स आए सबको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। नाज़रीन, ये वाक़यात अभी यूं ही जारी और सारी थे कि अरब में एक बड़ा कहत आया और उस कहत में सबसे ज्यादा मुतासिर जो खानदान हुआ वो खानदान था बनु हाशिम का, जिसके सरदार थे हजरत अबू तालिब। नाज़रीन, यहाँ पर एक और रिवायत भी कुछ इस तरह मिलती है कि जब सैयदा खदीजतुल कुबरा का सामान तिजारत शाम की तरफ जाता था तो अरब के कुछ बद्दू थे जो कि बनु हाशिम के हलीफ कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। वो सामान तिजारत लूट लिया करते थे क्योंकि उनको पता था कि इसमें सबसे ज़्यादा माल जाता है और फिर ये तो खातून है, कोई एहतजाज भी नहीं करेंगी, तो हमेशा उनके साथ ऐसा ही होता था। अब की बार ऐसा हुआ कि हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा जो कि बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर थी, उन्होंने उस पूरे मंजरनामे का जायज़ा लिया और उन्होंने इस बात का अंदाज़ा लगा लिया कि जो अरब के बद्दू जो छापा मार जो रहजन हैं वो दर हकीकत बनु हाशिम के हलीफ कबाइल हैं। लिहाजा हज़रत खदीजतुल कुबरा हज़रत अबू तालिब के पास गई जो कि सरदार थे और उनसे कहा आपके हलीफ कबाइल जो हैं मेरा सामान तिजारत लूट लेते हैं, अब की बार कुछ ऐसा हो कि ऐसा ना हो।
हजरत अबू तालिब ने कहा ठीक है, अगर वो लोग हैं तो मैं खुद उनसे बात करूंगा। अबू तालिब ने उन तमाम हलीफ कबाइल को बुलवाया और उनके सरदारों से कहा कि देखो तुम लोग जो है ये सामान तिजारत नहीं लूटना, बल्कि इसमें एक एक दरहम उसमें शामिल करो और फिर उसमें जो तिजारत से जो मुनाफा होगा वो तुम्हें डबल होकर मिल जाएगा। लिहाजा हजरत खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का जब सामान तिजारत गया तो वो रहजन ही उनके रहबर बन गए और उन्होंने बासानी काफिला जाने दिया और उस साल ठीक ठाक मुनाफा हुआ। और जब मुनाफा हुआ तो हजरत खदीजा ने मुआहिदे के मुताबिक अबू तालिब के पास जाकर वो रकम दी, तो अबू तालिब ने फरमाया कि मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं है। तो हजरत खदीजा ने कहा बताइए फिर मैं आपकी क्या खिदमत कर सकूं। तो इस पर अबू तालिब ने कहा बेहतर यही होगा कि तुम मेरे भतीजे को अपने साथ काफिले में शामिल कर लो और उसे यहाँ का एक मैनेजर, आजकल के दौर में मार्केटिंग मैनेजर या समझे बिजनेस मैनेजर, वो रख लो। हजरत खदीजातुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के दिल में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत तो थी ही थी, और जब नाम मोहम्मद सुना तो फौरन राजी हो गई। ये वो ताने बाने थे जो खुद ब खुद बुने जा रहे थे। फिर क्या होता है, हजरत खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाती हैं और तमाम सामान तिजारत आपके हैंड ओवर करती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का नाम लेकर वो काफिला लेकर निकलते हैं। हजरत खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का काफिला जब वादिये उम्विया की तरफ वो पहुंचता है तो वहां पर बादल आ जाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नूरे नबुवत से देख लेते हैं कि यहाँ पर शदीद तूफानी बारिश होने वाली है, गो कि अभी ऐलाने नबुवत नहीं हुआ है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ पर काफिला रुकवाते हैं तो वाकई मूसलाधार बारिश होती है और ये बारिश 4 दिन तक जारी रहती है और उसमें बेइंतहा नुकसान होता है उन काफिले वालों का जो चल पड़े थे। बहरहाल जब तूफानी बारिश रुकती है तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिला लेकर आगे बढ़ते हैं और फिर एला के मकाम पर आते हैं। ऐला या एला वो जगह है जो कि बसरा के करीब थी, बसरा मगर शाम वाला बसरा, इराक वाला नहीं। वहां पर जब पहुंचते हैं तो वहां पर एक यहूदी रब्बी जिसका नाम तारीख में इब्ने यूनान बताया जाता है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता है और फरते जज्बात से कह उठता है ये आखिरी नबी हैं। और फिर वादी एला से जो लोग आते हैं वो सामान खरीदने लगते हैं, यहाँ तक कि बहुत सारा सामान शाम पहुंचने से पहले ही बिक जाता है। बहरहाल मुआहिदा चूंकि शाम का था, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तमाम सामान लेकर जब शाम में पहुंचते हैं तो शाम के लोगों को पता चलता है कि अरब के ताजिर आए हैं जिनके पास बेहतरीन माल है। लोग जौक दर जौक आने लगते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले दिन सामान तिजारत नहीं खोलते। ये भी एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर की सखावत है, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं कि मक्का के और भी काफिले आए हुए हैं, अगर मेरा ही सामान बिक गया तो उनका सामान कोई क्यों कर लेगा। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 दिन इंतजार करते हैं। जब सबका माल बिक जाता है फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सामान तिजारत खोलते हैं तो अहले शाम जौक दर जौक आपके सामान पर टूट पड़ते हैं और फिर सारा सामान खाली हो जाता है। अगले दिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सामान तिजारत खोलते हैं। अब यहाँ पर एक अहम बात है कि जो कि हजरत खदीजातुल कुबरा से बतौर कर्जा लेकर सामान तिजारत लेकर आए हैं, तो अगर चाहते तो पहले वो अपना सामान तिजारत खोल सकते थे। कहा नहीं, पहले उस शख्सियत का सामान तिजारत बिके जिसके लिए मैं यहाँ पर बतौर एडमिनिस्ट्रेटर बन के आया हूँ, वरना आजकल के अंदर तो सबसे पहले अपना माल बिकवाया जाए। मगर यहाँ पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर नबूवत भी है और बेहतरीन सखावत भी है। और फिर अल्लाह का करना ये होता है कि हफ्ते भर के अंदर अंदर तमाम सामान तिजारत ना सिर्फ बिकता है बल्कि उसका इतना प्रॉफिट होता है कि जितना पूरी अरब दुनिया में ना हो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तमाम तर मुनाफा लेकर वापस मक्का आते हैं। यहाँ पर एक और बात भी अहम है जो कि रह गई थी कि हज़रत खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपना गुलाम मैसरा भी भेजा था और ये उसको ताकीद की थी कि तुम मोहम्मद को देखना कि वो किस तरह तिजारत करते हैं। मैसरा का काम था रिपोर्ट बनाना। जब
वापस मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का पहुंचते हैं तो मैसर आ जाकर हजरत खदीजा को रिपोर्ट पेश करता है और बताता है इतना प्रॉफिट हुआ है जितना आज तक पूरे अरबिस्तान में ना हो सका। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फिर ये पूछती हैं कि बताओ मोहम्मद ने तिजारत कैसे की, तो वो बताता है कि निहायत सदाकत के साथ, निहायत दयानत के साथ, और हर चीज़ खुद वाजे करके बताई। और फिर ये बात भी बताई कि पहले आपका सामान बिकवाया, बाद में बनु हाशिम का सामान बिकवाया। ये सुनकर हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दिल में जो पहले से अकीदत है अब और बढ़ गई। हजरत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का मकान सबसे ऊंचा था, लिहाजा वो अपने मकान की छत पर गई और वो क्या देखती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा के पास आने से कबल मक्का मुकर्रमा में खाने काबा के अंदर तवाफ करके अल्लाह का शुक्र बजा ला रहे हैं। हजरत खदीजा के दिल में और मोहब्बत बढ़ गई कि ये तो वाकई मवाहिद हैं, तौहीद परस्त हैं। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और तमाम सामान का हिसाब दे देते हैं। हजरत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं आपको इसके बदले क्या चाहिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी किस्म की डिमांड नहीं करते, बल्कि जो मुआहिदे के मुताबिक जो तय होता है वही लेते हैं और वापस आकर अपने चचा अबू तालिब के सपुर्द कर देते हैं। अब सूरत हाल कुछ यूं है कि हजरत खदीजा के दिल में मोहब्बत रोज बरोज बढ़ रही है। एक दिन उनकी सहेली नफीसा ने कहा कि ताहिरा आप शादी कर लें। हजरत खदीजा ने कहा बहुत सारे प्रपोजल्स आ रहे हैं मगर मैं किससे करूं? तो नफीसा ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया। हजरत खदीजा के दिल में तो पहले ही मोहब्बत थी। उन्होंने कहा कि ठीक है तुम पैगाम भेजो। फिर एक दिन नफीसा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने काबा का तवाफ करते हुए देखा और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ रहे थे, नफीसा ने आपको रोक कर कहा ऐ मोहम्मद आप शादी क्यों नहीं कर लेते? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शादी मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरे पास तो मालो असबाब भी नहीं, ना मेरे पास अपना जाती घर है, मैं कैसे शादी करूँ और कौन करेगा मुझसे शादी? नफीसा कहती हैं अगर मैं आपको कुरैश की सबसे हसीन और मालदार औरत के बारे में बताऊं तो क्या आप राजी हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम पूछते हैं तो नफीसा कहती हैं खदीजा बिन्ते खुवैलद। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौंकते हैं और फिर कहते हैं क्या वो मुझसे शादी करेंगी? अगर ऐसा है तो ठीक है, मेरा पैगाम भिजवा दो। नफीसा दौड़ी दौड़ी आती हैं और हजरत खदीजतुल कुबरा से फरमाती हैं कि मुबारक हो, मोहम्मद ने हाँ कर दी है। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बेइंतहा खुशी होती है, लिहाजा वो अपनी बहन हिंदा को हजरत अबू तालिब के पास भेजती हैं कि वो पैगाम निकाह लेकर जाएं। हिंदा जब जाती हैं तो हजरत अबू तालिब बहुत बेहद मसरूर होते हैं और कहते हैं कि अगर मेरे भतीजे ने हाँ कर दी है तो मुझे किसी किस्म का एतराज नहीं। अभी ये बात चल रही है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाते हैं और अपने तीनों चचा अबू तालिब, हजरत अब्बास और अबू लहब को निकाह के बारे में बताते हैं। यहाँ पर तमाम चचा खुश होते हैं सिवाय अबू लहब के। अबू लहब कहता है कि क्या तुम उसका मेहर अदा करने के काबिल हो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही फरमान होता है कि मेहर की रकम तो अल्लाह ताला खुद अदा करवा देगा, मुझे उसकी जात पर यकीन है। बहरहाल जब ये बात होती है तो अबू तालिब सफिया बिनते अब्दुल मुतल्लिब को हजरत खदीजा के घर भेजते हैं। जैसे ही हजरत सफिया जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हैं, वो आती हैं हजरत खदीजा के घर, जिनके भाई की शादी खदीजतुल कुबरा के भाई अवाम बिन खुवैलद से हुई थी। यानी वो रिश्ते में जहां एक तरफ मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हैं तो दूसरी जानिब हजरत खदीजतुल कुबरा की भाभी भी हैं। जैसे ही वो भाभी को देखती हैं तो फौरन अपने घर के अंदर आलीशान दावत का एहतमाम करवाती हैं। मगर यहाँ पर हजरत सफिया कहती हैं मैं यहाँ पे खाने पीने नहीं आई, बल्कि मैं इस बात की तस्दीक करने आई हूँ कि आया जो बात मक्का में मशहूर हो रही है कि तुमने मेरे भतीजे मोहम्मद के नाम पैगाम निकाह भेजा है, क्या इसमें सच्चाई है? हजरत खदीजतुल कुबरा फरमाती हैं जी हाँ बिल्कुल सच्चाई है, बस ये कहना था कि हजरत सफिया बगैर खाए पिए वापस अबू तालिब के पास आती हैं और बताती हैं कि वाकई इस बात में सदाकत है। और फिर हजरत अबू तालिब भी खुश होते हैं, मगर अभी मामला बाकी है। अब क्या होता है, हजरत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करती हैं और फिर फरमाती हैं मैं आपके अक़्द में आना चाहती हूँ।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम दोबारा वही बात दोहराते हैं, मेरे पास मालो मता नहीं। तो उस वक्त हजरत खदीजातुल कुबरा कहती हैं, मेरा माल सारा का सारा आपका माल, मैं जहां आपकी बीवी होंगी मुझे आप अपनी कनीज समझिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की आंखें भी भीग जाती हैं, क्योंकि कुछ ही अरसे कबल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने अपने चचा की बेटी से पैगाम निकाह भेजा था, मगर चचा ने ये कहकर इनकार कर दिया था कि भतीजे के पास अपना घर और मालो मता नहीं, मैं कैसे अपनी बेटी दे दूं। आज तारीख देख रही है कि अरब की सबसे हसीन और सबसे मालदार खातून खुद अपना रिश्ता मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज रही है। और यहाँ पर कुरान पाक की उन आयात की तस्दीक हो गई कि अलम यजिद का यतीमन फ़आवा व वजद का दालन फ़हदा व वजद का आइलन फ़अगना फ़अम्मल यतीमा फ़ला तखर व अम्मस साइला फ़ला तनहर व अम्मा बिनिअमती रब्बिका फ़हद्दिस। जिसका मफ़हूम है कि हमने आपको जब यतीम पाया तो हमने आपको नेमतों से सरफराज कर दिया। अब सूरत हाल यह है कि दोनों घरानों में मसरतों की लहर दौड़ गई। अबू तालिब को पता चलता है तो अबू तालिब तमाम सरदारान कुरैश को लेकर हजरत खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के चचा अमर बिन असद के घर रवाना होते हैं और वहां पर निकाह की तकरीब मुनक्किद हो रही होती है। नाज़रीन, अभी भी यहाँ पर बहुत सारी रुकावटें हैं। अमर बिन असद के घर दोनों खानदान के लोग जमा होते हैं। हजरत खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा आती हैं। अब निकाह की तकरीब है, अबू तालिब खुतबा पेश करते हैं। खुतबे के बाद बात आती है महर पर। तो अमर बिन असद कहते हैं कि क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना महर अदा कर सकेंगे। अभी जब ये बात करते हैं तो अबू लहब फिर बोल पड़ता है और वो कहता है कि मोहम्मद के पास इतने रकम कहाँ कि वो खदीजा के अखराजात उठा सके, माज़ल्ला। तो इस पर हजरत अब्बास खड़े होते हैं और कहते हैं, मुझे अपने भतीजे के महर के लिए बादशाहों के महल से भी दौलत लानी पड़े तो मैं तैयार हूं। अभी ये बात हो रही है। नाजरीन, इतने में सैयदा खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा खुद आ जाती हैं और कहती हैं, चचा आप किस किस्म के महर की बात कर रहे हैं, मैं खुद को मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के निकाह में देती हूँ और महर की रकम भी मैं खुद अदा करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही दोनों जानिब मुबारकबाद और आफरीनी के पैगामात गूंजने लगते हैं और फिर हजरत खदीजा अबू तालिब से कहती हैं कि आप जाइए और 10 ऊंट नहर कीजिए ताकि दावत वलीमा हो। इस तरह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अक़्द हो जाता है। और सैयदा खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मैं घर से होकर आ जाऊं। हजरत खदीजा तो जानती हैं कि आपका अपना जाती घर तो नहीं। हजरत खदीजा कहती हैं, ऐ मेरे आका, यहाँ पर लफ्ज देखें, या सैयदी, अब मेरा घर आपका घर है और ये तमाम दौलत आपके कदमों पर निछावर है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने ये नेमत क्यों कर की? क्योंकि ये तमाम सामान तिजारत से मिलने वाला मुनाफा, ये तमाम तर दौलत इस्लाम पर निछावर होने वाली है। और फिर तारीख देखती है कि वो हस्ती जो अब तक जिनके पास तमाम औसाफ और कमालात थे, जिनकी सिर्फ दौलत की वजह से बड़े बड़े सरदार भी अपनी बेटी देने से मना कर रहे थे, अल्लाह ताला ने कुरैश की सबसे बेहतरीन खातून को मेरे नबी की ना सिर्फ ज़ौजा बनाया बल्कि उनके दिल में भी ये बात डाल दी कि मैं आपकी बीवी होने के साथ साथ मैं आपकी कनीज़ भी हूँ। और फिर देखते ही देखते हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो दस्तरखान और जो इमदाद के लिए सामान पहले ही वसी था, अब और वसी हो जाता है, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बांटने वाले हैं। अब सूरत हाल ऐसी होती है कि एक दिन हज़रत हलीमा सादिया, वही हलीमा सादिया जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई वालिदा है, वो आती हैं और बताती हैं कि इस वक्त घर में बहुत परेशानी है, क्योंकि जो अभी हाल ही में कहत हुआ है उसने हमारी तमाम जमा पूंजी हमसे छीन ली। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सुन रही हैं। इतने में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें भी भीगी हुई हैं। हज़रत खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा 40 बकरियां और 1 ऊंट आपकी नज़र कर देती है। इस तरह कुरैश के तमाम नादार लोगों की किफ़ालत होने लगती है और यूं ताहिरा का सामान ताहिर भी अवाम में बंटना शुरू हो जाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदा खदीजातुल कुबरा
دونوں ساتھ جاتے ہیں خانہ کعبہ کے اندر اور نماز ادا کرتے ہیں۔ ابھی دیکھیں اعلان نبوت نہیں ہوا، بلکہ یہ تاریخ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد جب وہاں پر بت رکھے گئے تو یہ پہلا موقع ہے ایک کپل آ کر نماز ادا کرے اور وہ بھی اللہ کے آگے سربسجود ہو۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ روزانہ خانہ کعبہ جاتے، رات کے وقت جا کے عبادت کرتے۔ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا اور پھر وہ لمحہ بھی آ گیا جس کا حضرت خدیجہ الکبریٰ سمیت پوری عالم انسانیت کو انتظار تھا، یعنی نور نبوت کا تاج خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل اب زیادہ غور و فکر کرنے لگا۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی وادی سے باہر غار حرا میں جانے لگے، جس کے لیے روزانہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرتی اور وہ کھانا باندھ کر دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 4 دن غار حرا میں غور و فکر کرتے ہوئے گزارتے۔ جو خواب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے وہ حرف پا حرف لمحہ با لمحہ پورا ہو جاتا۔ اب حضرت خدیجہ کو یقین ہے کہ نبوت ملنے والی ہے، مگر کب اس کا نہیں پتا۔ بس پھر وہ دن بھی آ گیا جب سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور غار حرا میں پہلی مرتبہ اقرا بسم ربک الذی خلق کی آیت تلاوت کر کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے عطا کردہ تمام علم منتقل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرا سے نیچے اتر رہے ہیں، بار بار آواز آتی ہے انت رسول اللہ انا جبریل امین۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سنتے ہیں اور سیدھا جب گھر آتے ہیں تو سب سے پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو بتاتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تو پہلے ہی یقین ہے، لہٰذا وہ یہ سنتے ہی نہ صرف خوش ہوتی ہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فوراً ایمان لاتے ہوئے فرماتی ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ جو ہم کہتے ہیں نا میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ سب سے پہلے جملہ کہنے والی ہستی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ہے۔ آپ یہ دیکھیں، پوری تاریخ انسانیت میں دیکھیں، تمام انبیاء علیہ السلام کی تاریخ میں دیکھیں کہ پہلی مرتبہ ایمان لانے والی جو ہستی ہیں وہ خاتون ہیں۔ ایک دلچسپ بات ہے، جو لوگ اس وقت بات کرتے ہیں فیمنزم کی، بات کرتے ہیں حقوق نسواں کی، تو وہ یہ دیکھیں اسلام نے عورت کو جو مرتبہ دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ نبی، آخری نبی جو اللہ کا آخری پیغام سب سے پہلے کسی کو سناتا ہے تو وہ ایک عورت ذات ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس جاتی ہیں۔ اب یہاں پر ناظرین بڑی اہم بات ہے، جیسا کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت خدیجہ لے کر گئیں اور پھر ان سے تصدیق کروائی۔ تصدیق کی ضرورت ہے ہی نہیں، تصدیق کی ضرورت ہے ہی نہیں، بلکہ یہ واقعہ بتایا، چونکہ ورقہ بن نوفل نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں اور ہو سکتا ہے تم ہی اس کی شریک حیات بنو، یہ خوشخبری دینے کے لیے گئی تھی۔ ورقہ بن نوفل یہ سن کر جہاں پر خوش ہوتے ہیں وہاں پر اداس بھی ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ حضرت خدیجہ کہتی ہیں اے بھائی آپ اداس کیوں ہوئے؟ کہتے ہیں ورقہ بن نوفل میں دیکھ رہا ہوں کہ انہیں بہت جلد یہاں سے نکال دیا جائے گا، ان پر ظلم و ستم کی اب آندھیاں چلنے والی ہیں، اس کے لیے تیار رہنا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں اے بھائی میں بالکل تیار ہوں۔ اور پھر واقعی ایسا ہوتا ہے۔ ابتدا میں 3 سال خفیہ دعوت کا پیغام چلتا رہتا ہے، 3 سال بعد جب علل اعلان دعوت دی جاتی ہے تو بس پورا عرب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہو جاتا ہے۔ اور پھر بات یہاں تک نہیں رکتی، بلکہ 7 نبوی کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام بنو ہاشم کا بائیکاٹ ہو جاتا ہے۔ اور پھر شیب ابی طالب نامی گھاٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب اور تمام جن میں حضرت خدیجہ بھی شامل ہیں ان کے ساتھ جا کر محصور ہو جاتے ہیں۔ شیب ابی طالب کی گھاٹی کبھی آپ لوگوں میں سے کسی نے اگر دیکھی ہو تو وہ ایک ایسی گھاٹی ہے جہاں پر رہنا بڑا دوبھر ہے،
मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम और आपके अहले बैत ने वहां पर जो मुश्किल के लम्हात काटे, तारीख ये भी बताती है कि एक वक्त ऐसा भी आया, आप और आपके साथियों ने घास उबाल कर पी, कुछ लोगों ने तो चमड़ा तक उबाल के खाया। ये है दीन के लिए कुर्बानी, जिसमें हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा भी शामिल है। और अगर तारीख देखी जाए तो दर हकीकत यही है कि नाज़ो अंदाम से पली हुई सैयदा खदीजतुल कुबरा वो कैसे बर्दाश्त करती इस घाटी की तकालीफ, उस माहौल की तकालीफ, जिन्होंने कभी मुश्किलात देखी नहीं थी, मगर आज दीन के नाम पे सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हैं। और यही वजह थी कि जब वो 3 साल रहीं, जाहिर है कोई वायरस होगा, जैसा कि कुछ उलमा इकराम ने, जिनमें डॉक्टर मोहम्मद हमीदुल्लाह भी शामिल है, उन्होंने लिखा कि वहां पर उनको कोई तकलीफ हुई जिसकी वजह से आपकी सेहत गिरने लगी। हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियों ने जन्म लिया और 3 बेटों ने जन्म लिया। मगर साथ साथ एक और अहम बात भी है, हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के पहले शौहर से होने वाले बेटे हारिस बिन अबी हाला और हिंद बिन अबी हाला, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साये आतिफत में ही तरबियत पा रहे थे, उनमें हारिस बिन अबी हाला वो शख्सियत है जिनको अबू जहल ने खाने काबा में शहीद कर दिया था। और इस्लाम के नाम पर जो पहला खून बहा वो भी खानदान अहले बैत का है, यानी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोतेले बेटे, उनका खून बहा। हज़रत खदीजतुल कुबरा ने अपना बेटा भी इस्लाम के नाम पे कुर्बान कर दिया। दूसरे बेटे हाला और हिंद, जो 2 बेटे थे, वो भी इस्लाम ले आए। यहाँ तक कि इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु जब एक रिवायत बयान करते हैं जो कि हदीस हसनी कहलाती है, उसमें फरमाते हैं कि मेरे मामू के मुताबिक, जो लोग कहते हैं ना कि ये मैं रिवायत कर रहा हूँ इनसे, हजरत इमाम हसन फरमाते हैं मैं रिवायत करता हूँ अपने मामू से, यानी हजरत हाला से। और फिर हजरत हाला और हिंद दोनों मदीना भी हिजरत करते हैं और फिर उनका मकान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहल्ले में है। और हिंद हमेशा इस बात पर फख्र करते हैं कि मेरे वालिद रसूल अल्लाह, फातिमा मेरी बहन, ज़ैनब मेरी बहन और मेरी वालिदा खदीजा। नाज़रीन, वो लम्हा भी आता है जब हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का परवाना आखिरत आने वाला है। मगर उससे पहले एक अहम बात भी बताते चलूँ, जो कि बिल्कुल इब्तिदाई बात है। जब अरब के अंदर मुश्किलात थी, सफ़र बड़े दुश्वार थे, सफ़र के लिए सफ़र व हज़र की सख्तियाँ बड़ी मुश्किल होती थी, उस वक्त हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने ज़ाती खर्चे से यमन से लेके मक्का तक एक ऐसी शहरा बनाई जहाँ पर जगह जगह बाजार थे, जगह जगह समझे जैसे टक शॉप्स होती हैं वो मौजूद थी, खाने पीने के स्टॉल थे। यानी उस दौर की मोटरवे, यानी मोटरवे का जो कॉन्सेप्ट देने वाली शख्सियत है वो है सैयदा खदीजतुल कुबरा। है ना ये एक हैरानकुन बात कि एक औरत, एक खातून, इस्लाम की तालीम देखें कि एक खातून को ये रुतबा मिलता है कि वो मोटरवे इजाद करती हैं। आजकल जितनी भी दुनिया के बड़े बड़े ममालिक हैं, वहाँ की तरक्की का दारो मदार देखना है तो वहाँ की शाहराहों पर देखिए। और हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने ज़ाती खर्चे से यमन से लेके मक्का तक एक मोटरवे बनाई, जहाँ पर अरब के जो काफिले थे वो आते जाते थे। सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का परवाना आखिरत भी आ जाता है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि कुछ ही दिन कबल शेब अबी तालिब से आई हैं, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तबीयत मुसलसल गिर रही है। उन्हें यकीन है कि मेरा परवाना आखिरत आ चुका। फिर वो हज़रत फातिमा को बुलाती हैं और कहती हैं कि अपने बाबा से कहो कि मुझे अपनी चादर दे दें। वो क्यों दे दें? चूँकि मुझे अज़ाब कब्र से डर लगता है। नाज़रीन सोचें, जो ज़ौजाए नबी हैं, जो रफ़ीक़ाए नबी हैं, उनको अपनी आखिरत की फ़िक्र कितनी है कि सब कुछ इस्लाम के नाम पर कुर्बान कर दिया, फिर भी वो ये कहती हैं मुझे कब्र की सख्ती से डर लगता है। वजह क्या है? वजह यह है उन्होंने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से ये अल्फाज भी सुन रखे हैं कि कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या दोज़ख के घड़ों में से एक घड़ा। तो कहती हैं कि बेटा अपने बाबा से कहो कि मुझे अपनी चादर इनायत कर दे ताकि मुझे कब्र की सख्ती महसूस ना हो। कौन सी चादर? वो चादर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ज़ेब तन की थी तो उस वक्त पहली वही का नुज़ूल हुआ था।
میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ چادر عنایت کر دیتے ہیں اور پھر پروانہ آخرت بھی آ جاتا ہے اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا 10 رمضان المبارک کو وصال فرما جاتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وہ چادر جہاں پہناتے ہیں کفن کے طور پر، تھوڑی دیر میں حضرت جبریل امین علیہ السلام بھی پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کے لیے، آپ کی زوجہ مطہرہ کے لیے جنت سے کفن بھیجا ہے، یہ بھی پہنا دیں۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کفن کے اوپر وہ چادر بھی، جنت سے آئی ہوئی چادر بھی خود پہناتے ہیں اور پھر خود قبر میں اترتے ہیں اور ملکہ عرب کو سپرد خاک کرتے ہیں اور جنت معلیٰ میں آپ کی تدفین ہوتی ہے، صدا رہے نام اللہ کا۔ مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو محبت ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اس کا ایک منظر اور بھی سنتے جائیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو سب سے بڑی اولاد ہے وہ ہے حضرت سیدہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کا نکاح ابوالعاص بن ربیع اموی سے ہوتا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ابھی ابوالعاص بن ربیع کے نکاح میں ہیں۔ اس وقت مسلمان اور کافروں کے درمیان شادی ہو سکتی تھی، ابھی نکاح ختم ہونے کا جو حکم ہے وہ نہیں آیا تھا، ابھی زینب نکاح میں ہے ابوالعاص بن ربیع کے۔ غزوہ بدر ہوتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا داماد ابوالعاص بن ربیع کفار کی طرف سے لڑ رہا ہے اور گرفتار ہو جاتا ہے۔ گرفتار ہو کر آتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے یہ فرماتے ہیں کہ جو فدیہ دے کر اپنے عزیز و اقارب کو چھڑوانا چاہے وہ چھڑوا سکتا ہے۔ اب حضرت سیدہ زینب کو یہ خبر پہنچتی ہے کہ ابوالعاص بن ربیع گرفتار ہو گئے۔ اب ان کے پاس تو کوئی مال و دولت نہیں ہے، چونکہ ابوالعاص بن ربیع وہ سامان تجارت لے کر جا رہے تھے جب وہ گرفتار ہوئے ہیں، تو حضرت زینب اپنی والدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ نیکلس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھجوا دیتی ہیں اور لکھتی ہیں بابا میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں کہ میں ابوالعاص بن ربیع کو رہا کروا سکوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ ہار دیکھتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، انہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی یاد آ جاتی ہے۔ وہ صحابہ کرام کو بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ خدیجہ کا ہار آیا ہے، بتاؤ میں کیا کروں۔ اب تو بہت سارے صحابہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ابوالعاص بن ربیع کو چھوڑ دیں، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بھی مشورہ کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ میری مرضی میں جیسے چاہوں کروں، مگر تب بھی یہاں پر شورا سے بات کی۔ تمام شورا کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ ہار بھی واپس کر دیں اور ابوالعاص بن ربیع کو بھی چھوڑ دیں، مگر یہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ شرط رکھواتے ٹھیک ہے میں آپ کو چھوڑتا ہوں مگر تم زینب کو بھیج دینا۔ لہٰذا زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ آتی ہیں تو کچھ ہی دنوں بعد ابوالعاص بن ربیع بھی آ جاتے ہیں اور کلمہ پڑھ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار بن جاتے ہیں، اور آپ کی بیٹی امامہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے بیٹے علی بن ابوالعاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے جو کہ کربلا میں امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شہید ہوتے ہیں۔ خیر یہ تو بات ہے برسبیل تذکرہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے کتنی محبت تھی، اس بات کا اندازہ لگائیے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن ہم گھر میں موجود تھے کہ قریش کی ایک بزرگ خاتون مکہ سے آئی۔ جب وہ مکہ سے آئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے باتیں کرنے لگے اور پھر اس کا اور اس کے قبیلے کا حال چال پوچھا۔ میں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یہ عورت کون تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، فرمایا یہ خدیجہ کی سہیلی تھی، اور خدیجہ جب بھی گھر میں سالن بناتی تھی تو وہ ان کے گھر پہ ضرور بھیجا کرتی تھی۔ سامعین کرام، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے فضائل و مناقب بیان کرتے رہیں، وقت ختم ہو جائے گا مگر ان کا بیان، ان کے فضائل، ان کے شمائل، ان کے خصائل ختم نہیں ہوں گے۔ اسی لیے اسٹار پوائنٹ کی اس ویڈیو کو ہم یہیں روکتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ آپ لوگوں نے ابھی تک یہ ویڈیو دیکھی ہے اور دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ دیکھ نہیں رہے، بلکہ یہ آپ کی ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے عقیدت ہے،
وہ محبت ہے جس نے یہ دیکھنے پر مجبور کیا۔ اور ہاں، جاتے جاتے میں آپ لوگوں سے ایک درخواست کروں گا۔ میں چینل سبسکرائب کرنے کو نہیں کہوں گا، بلکہ اس سے بڑی بات کروں گا۔ میں درخواست یہ کروں گا کہ ہمارا اسٹار پوائنٹ، یہ جو چینل آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی روح رواں سلمیٰ مغل کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بے انتہا بلند کرے۔ رمضان المبارک میں ان کے لیے خصوصی دعا کرے، اور اس کے موجودہ روح رواں طلال بھائی کے لیے خصوصی طور پر دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ انہیں استقامت دے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ابصار احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔